السلام علیکم خواتین حضرات، شروع کرتے ہیں آج کا حسب حال۔ میں ہوں آپ کا میزبان جنید سلیم۔ شو میں میرا ساتھ دیں گی ناجیہ بیگ اور اس شو کی جان عزیزی۔ السلام علیکم ناظرین۔ السلام علیکم۔ کیا ہو گیا عزیز صاحب؟ ہمارے اینکر کی باہر بڑی بےزتی ہوئی۔ کون سی بےزتی ہوئی ہے میری؟ وہ جو بحث کر رہے تھے میاں غفار صاحب سے، کیا ان سے کہتا جی کہ عابدہ حسین صاحبہ جو ہیں وہ سب سے پہلی ممبر ہیں پارلیمنٹ کی جو جیت کے الیکشن لڑ کے جنرل الیکشن تو اسمبلی میں آئی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ بھائی صاحب نسیم ولی خان سب سے پہلی خاتون تھی جو الیکشن جیتی تھی۔ ہاں تو ایک منٹ ٹھہر جاؤ نا، ایک منٹ ذرا بریک لگایا کرو۔ وہ بھی ٹھیک کہہ رہے تھے اور غلط میں بھی نہیں کہہ رہا تھا۔ یہ کیا بات ہے؟ یہ ہو سکتا ہے، یہ ہو بالکل سکتا بالکل، ہے، میری یہ بات ہو سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے میری بات تو سنو۔ میری نقلیں نہ اتارا کرو، میں تم کو بتا دوں۔ اچھا، یہ لوگ میری تصویریں اتارتے ہیں، وہ میری نقلیں اتار رہے ہیں۔ اور تم جو سارا دن میری یہاں بیٹھ کے نقلیں اتارتے ہو وہ میری تو یہ جاب کا حصہ ہے۔ میری بات سنو، میاں غفار صاحب کہہ رہے تھے کہ بیگم نسیم ولی خان پاکستان میں پہلی خاتون تھی جو قومی اسمبلی میں الیکشن جیتی تھی، یہی کہہ رہے تھے نا؟ ٹھیک ہے، اور میں یہ کہہ رہا تھا کہ بیگم عابدہ حسین صاحبہ پہلی خاتون ہیں جو ممبر قومی اسمبلی منتخب ہوئی تھی، ممبر قومی اسمبلی بنی تھی۔ یہ دونوں باتیں ٹھیک ہے، کیونکہ نسیم ولی خان صاحبہ جب الیکشن جیتی تھی تو انہوں نے حلف نہیں اٹھایا تھا اور وہ دو حلقوں سے رکن منتخب ہوئی تھی 1977 کے الیکشن میں، جو متنازع ہو گئے تھے بعد میں، کیونکہ بعد میں تحریک چل پڑی تھی بھٹو صاحب کے خلاف، اور بیگم نسیم ولی خان جو ہے انہوں نے حلف نہیں اٹھایا تھا، لیکن بیگم عابدہ حسین صاحبہ نے الیکشن جیتا بھی تھا اور حلف بھی اٹھایا تھا، اور وہ پاکستان کی پہلی خاتون رکن قومی اسمبلی ہیں جنہوں نے جنرل الیکشن میں حصہ لے کر وہ منتخب ہوئی تھی۔ واہ 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 یار، آج خواتین کا ڈے منایا جا رہا ہے تو یار اسی بات کو، خواتین کی بات کو بڑھاتے ہیں۔ دیکھو ذرا کہ نسیم ولی خان صاحبہ اس علاقے سے 2 حلقوں سے منتخب ہوئی تھی، جس علاقے میں اب ووٹ ڈالنا جو ہے اس پر بھی کہتے ہیں جی پابندی ہونی چاہیے۔ ہاں، انتہائی افسوس کی بات ہے کہ ہمارے بعض علاقوں میں خواتین کے حق رائے دہی پر مختلف قسم کی قدغنیں لگائی جاتی ہیں، مطلب ہماری آبادی کا جو نصف حصہ ہے اس کو حق رائے دہی سے روکنا میرا خیال ظلم کے مترادف ہے۔ اچھا جی، یہ عابدہ حسین صاحبہ پہلی ممبر ہیں جو قومی اسمبلی کے اندر گئی تھی؟ ہاں جی، مخصوص نشستوں کی بات نہیں کر رہا، عام انتخابات میں مردوں کے مقابلے پہ الیکشن لڑ کے۔ اور یہ بے نظیر صاحبہ ان کے بعد پھر اسمبلی میں۔ ہاں۔ اچھا جی، جنید صاحب اپارٹ فرام دس کے کون پہ لو یار میں ایک انگریزی بولوں سیٹ کے اوپر دندلی پڑ جاتی ہے۔ سوری، واہ 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 کہنا چاہیے تھا مجھے۔ رہنے تو واہ واہ بھی نہ کرو، کیجول سا بس سنو اس کو۔ واہ واہ یا ہو کر کے تو لوگوں کو بتاتی ہو کہ بڑی محنت سے میں انگریزی بول رہا ہوں۔ نہیں اپارٹ فرام دس مجھے یہ بتاؤ کہ کون جیتا، کون پہلے اسمبلی میں گیا، یہ بتاؤ مجھے کہ کیا خواتین کے جو مسائل ہیں یہ خواتین ہی اسمبلی میں جائیں تو پھر ہی حل ہو سکتے ہیں، ویسے نہیں ہو سکتے؟ تمہاری کیا رائے ہے؟ میرا تو خیال ہے کہ ویسے بھی حل ہو سکتے ہیں۔ یہ جو ہمارے ملک میں جو خواتین ہیں ان کے مسائل جو ہیں وہ مرد حضرات جانتے ہیں کہ ہماری بہنوں کے، ماؤں کے، بیٹیوں کے یا خواتین جو ہیں، خواتین کے کیا مسائل ہیں، ان کو بھی کتنی عزت ملنی چاہیے یا ان کو ان کا کتنا حصہ ہونا چاہیے ملک کے اندر، سب کچھ پتہ ہے سب کو، مگر بات میرا خیال ہے مرد ہی رات زیادہ نہیں اٹھاتے خواتین کی۔ میرا خیال ہے کہ اگر کوئی مسائل حل کرنا چاہتا ہے تو پھر اس کے لیے خاتون ہونا ضروری نہیں ہے، اور اگر خواتین بھی اسمبلی میں چلی جائیں تو پھر بھی اس بات کی ضمانت نہیں ہے کہ وہ خواتین کے مسائل حل کریں گی۔ نہیں، مسائل پھر حل تو وہ کرا ہی لیتی ہے۔ کیسے؟ یہ تم دیکھ ہی چکے ہو 5 سال میں، لوٹے، جتیاں، چوڑیاں، ہلا ڈنڈے سوٹے، تو اس مرد ہی رات کافی ڈر کے زندگی گزارتے رہے ہیں 5 اس سال۔ کام میں مرد پیچھے تھے، مردوں نے کیا پرفارم کیا ہے؟ مگر جب خواتین کھڑی ہو جاتی ہیں سامنے تو پھر مرد ہی رات بیچارے ٹھوس ہو جاتے۔ میرا خیال ہے کہ جس قدر مایوس کن کارکردگی کا مظاہرہ مردوں نے کیا ہے،
کم و بیش وہی حال خواتین ممبران کا بھی رہا ہے. نہیں یار، اخباروں میں بھی آیا ہے کہ خواتین نے اسمبلی میں کی جو ہوتی ہے کاروائی اس میں زیادہ بڑھ چڑھ کے حصہ لیا. ہاں یہ کریڈٹ خواتین کو ضرور جاتا ہے کہ وہ مردوں کی نسبت زیادہ متحرک رہتی ہیں اسمبلی کی کاروائی میں، لیکن ایسی خواتین بھی ہیں جنہوں نے میرا خیال ہے کہ سال اسمبلی کا منہ ہی نہیں دیکھا، آئی نہیں ہے وہ. نہیں ہو سکتا ہے خواتین جو ہیں وہ گھروں میں بھی بڑی مصروف ہوتی ہیں نا، کئی اسمبلی کی ممبران خود مٹر نکالتی ہیں، وہ نہیں نوکر پہ چھوڑتی. دیکھو عوام کی طرف سے بھی اس کو یہی کہا جا سکتا ہے نا کہ مایوسی کا اظہار کیا گیا، ورنہ تم دیکھو کہ اگر پاکستان میں پہلی جو عام الیکشن لڑ کر رکن منتخب ہوئی ہیں بیگم نسیم ولی خان 1977 میں، اور 2002 کے انتخابات میں جو عام الیکشن لڑ کر رکن منتخب ہونے والوں کی خواتین کی تعداد تھی وہ میکسیمم تھی، سب سے زیادہ، یعنی 13 خواتین اسمبلی میں عام انتخاب لڑ کر آئی تھی. اور 2002 کے بعد پھر 2008 کے انتخابات میں یہ جو تعداد ہے کم و بیش نصف ہو گئی تھی. اچھا جی، نصف یعنی پہلے 13 خواتین جیت کے آئی تھی، اس دفعہ 6.5 آئی. 6.5 نہیں یار، لگ بھگ نصف یار. ہاں تہمینہ دولتانہ صاحبہ جیتی تھی، سائمہ اختر بروانہ جیتی تھی، روبینہ شاہین بٹو جیتی تھی، خوشبخت شجاعت صاحبہ جیتی تھی، فہمیدہ مرزا صاحبہ جیتی، اور سمینہ گھرکی صاحبہ جیتی. ہاں، اور اگر تم ایک نام اور شامل کر لو تو 2002 میں جتنی منتخب ہوئی تھی خواتین ان کے برابر ہو جائیں گی. ایک نام تم مس کر گئے ہو. کون سا جی؟ سیالکوٹ سے. او میں بسم اللہ کرا، ڈاکٹر فردوس عاشق قوان صاحبہ مر گئے تھا، مجھے یاد ہی نہیں رہا یار. ویسے عزیز صاحب اس موقع پہ اگر محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کا ذکر نہیں کریں گے تو میرے خیال سے زیادتی ہوگی. وہ پاکستان کی اور مسلم ورلڈ کی پہلی خاتون پرائم منسٹر تھی اور دنیا کی سب سے کم عمر ترین پرائم منسٹر بھی رہی ہیں. ہاں ان کے بغیر تو ظاہر ہے خواتین سیاستدانوں کا یہ کری پورا نہیں ہوتا. لیکن ایک اور عظیم خاتون جن کا ذکر کیے بغیر میرے خیال پاکستان کی جو ویمن پالیٹکس ہے اس کا ذکر مکمل نہیں ہو سکتا، محترمہ فاطمہ جناح مادر ملت. ایوب خان جیسے طاقتور آدمی کا مقابلہ کرنا کوئی آسان بات نہیں تھی. بالکل بالکل. ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے گا. وزیراعظم راجہ پرویز اشرف کا کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی عوام سے کیے گئے تمام وعدے پورے کرے گی. ماشاءاللہ آخری ہفتے میں یار وہ ویسے ہی تکلفن کہہ رہے ہیں، تم ہمیں آگے سے مہیا کرا رہے ہو. آخری ہفتے میں کوئی فلم چل رہی ہے، حکومت ہو رہی ہے، انہوں نے ویسے ہی کہہ دیا ہے از راہ تفنن. وعدہ انہوں نے کیا کہ ان سے راجہ صاحب آپ کس لیے جناب ایسے لوگوں کو موقع دیتے ہیں مہیا اڑانے کا؟ آپ نے کو وعدہ کیا ہی نہیں، ہمیں تو نہیں یاد آپ نے کو وعدہ کیا تھا. آپ نے بہترین حکومت کیا، نہ کو وعدہ کیا نہ اس کو پورا کیا. موج لینے دیں لوگوں کو، چپ کر کے اپنا ویری گڈ آخری ہفتہ اللہ وارث ہے. کوئی وعدہ نہیں کیا تھا انہوں نے یار. وہ بھٹو صاحب نے کیا تھا 70 کے دور میں، اس کو ہم لوگ کیری کرتے رہے ہیں. جیسے اختر رسول نہیں تھا گیند کو کیری کرتا کرتا آگے لے جاتا. وہی وعدے سارے ہمارے ذہنوں میں پھنسے ہوئے. راجہ صاحب نے کون سا وعدہ کیا؟ انہوں نے سوچا کہ چلو جاتے جاتے بھی ایک دفعہ کہہ ہی دوں لوگوں کی تباہی مائی کے لیے. جیسے میجک دکھانے والے نہیں کہتے کہ ابھی یہ میں گیند گیپ کروں گا، گیند گیپ کروں گا، گیند گیپ کروں گا. ساری مداری میں گیپ نہیں کرتا. اخیر پہ اگر کوئی پوچھ لے پائے گی یہ گیند آپ نے گیپ نہیں کیا، مداری آگے سے کہتا میں گیپ کر سکتا تھا، میری ایمانداری دیکھے میں نے نہیں گیپ کیا. حالانکہ عوام دیکھو وعدے وعدے بھول گئی ہوئی ہے، مگر راجہ صاحب کی ایمانداری دیکھو کہ وہ پھر بھی وعدے یاد کرا رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ ایک دفعہ آخری فکرہ بھی ہو ہی جائے. جس طرح مدر شاہ صاحب ہوتے تھے کہ بہت بڑے ایکٹر فلموں کے، وہ پوری فلم میں کوئی فکرہ کہا کرتے تھے اوہ میں ٹبر کھا جاتا ڈکار نہ مارا، آخر تک کہتے تھے. اخیر ان کو گولی بج جاتی تھی نا، ویلن ہوتے تھے نا وہ. گولی لگنے کے بعد گرتے گرتے بھی ایک دفعہ کہتے تھے کہ اوہ میں ٹبر کھا جاتے ڈکار. پاکستان کے شہری علاقوں میں 38% خواتین شوہروں کو ناشتہ بنا کر دینے کی عادی نہیں رہی. کھانے پینے کی عادات کے حوالے سے ایک جریدے کی سروے رپورٹ. دین وائٹ اگر بناتے ہیں ناشتہ تو بنائیں، مرد کو ٹنڈے تو نہیں نہ ہوتے.
या को निकाहनामे में लिखवाया था उन्होंने कि नाश्ता खवातीन ही बनाएंगी। पॉइंट है। शादी से अगले दिन नाश्ता आया तो था मेरे घर से, वो इसने थोड़ा ठूंसा था, उसके बाद बस बना के दे मुझे भी और खुद भी खाए नाश्ता। अच्छा। नाश्ता बनाना कौन सा मुश्किल होता है, अंडा तोड़ के छुट तवे ते वाला, अंडा तोड़ने के लिए कौन सा मजदूर लगाना पड़ता है, अंडा को लेंटर तो नहीं ना, तवे के नीचे तीली लगा, वैसे तो तीलियां लगाने के मास्टर होते हैं मर्द, तवे के नीचे तीली लगाते हुए इन्हें मौत पड़ती है, तीली लगा के ऊपर थोड़ा सा घी फेंके और फेंके उसमें अंडा, अंडा बेचारा तो मासूम सा होता है, 2 मिनट में हु करके पक जाते हैं। हम भी बीवी होते हैं, कोई कॉन्टिनेंटल कुक तो नहीं ना होते। सही। इतने शौक है, सुबह सुबह उठ के ऑर्डर देना शुरू कर देते, चिकन स्प्रेड मामलेट स्लाइस के साथ मुझे दे दो, देखो गार्लिक ब्रेड जरूर लाना, सदके जावा तेरी गार्लिक ब्रेड दे, अब्बा तेरा सारी जिंदगी बने को छोले ते नान खांदा रहा, तेनू केड़ी गार्लिक ब्रेड दे दिया। और तेरे पित्तल दे गिलास च लस्सी पीने वाले ब्याह तो बाद नखरे करन लग पे, गिलास को चिकनाई क्यों लगी हुई है, उतरे उथे अंडा तलन दी सा तेनू चिकनाई लगनी सी, और इनू रेत लग जानी सी। पॉप सिंगर अबरारुल हक का कहना है कि अगर इस बार भी नून लीग या पीपल्स पार्टी इक्तिदार में आई तो मैं हमेशा के लिए मुल्क छोड़ दूंगा। ओए होए 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 होए, इब्रारुल हक साहब लवा लो फिर वीजा। अगर उन्होंने फैसला कर ही लिया तो अब हम क्या कर सकते हैं, मैं तो मशवरा ही दे सकता हूँ जनाब कि आप ऐसे ना करें, अपना कल्ले का वीजा ना लगवाएं, साथ अपने भाई इसरार साहब का भी वीजा जरूर लगवा लें, क्योंकि आप चले गए तो उनको तो पीछे से किसी ने चुंगी मुहर्रर नहीं रखी। सियासी दुश्मनी होती है, पीछे से फिर सियासी दुश्मनी में खज्जल करते हैं, तो मैं नहीं ना पता, तुमने सियासत कभी देखी हो तो तब ना मुझसे पूछो जो इलेक्शन लड़ता है। आप इलेक्शन लड़े हैं? नहीं मैं नहीं इलेक्शन लड़ा, मुझे इलेक्शन लड़ता है। क्या मतलब? ये आगे गर्मियां आने वाली है ना, इतना इतना मोटा इलेक्शन मुझे लड़ता है, और हमारा इलाका इस तरह का है तो उधर इतना इतना मोटा इलेक्शन होता है। पूरे लाहौर में वाहद हमारा इलाका है जहाँ पे मक्खी छोटी और मच्छर बड़ा होता है। अजीब तुम बात कह रहे हो, इतना बड़ा फनकार मुल्क छोड़ने की धमकी दे रहा है। और यार तुम गुस्से में नहीं धमकी दे रहे, उनका दिल कर रहा है बाहर जाने को। क्यों? अपने दरीना दोस्त परवेज मुशर्रफ से अदाश हुए हुए। अजीज साहब वो इलेक्शन के रिजल्ट पे मुल्क छोड़ने का कह रहे हैं, इसलिए तो मैं भी बाउंगियां मार रहा हूँ। कितनी बुरी बात है, कितना बड़ा फनकार है यार भाई ये। तो देखो इलेक्शन हार जीत तो होती रहती है, इसमें कौन सा मुल्क छोड़ने वाली बात है। सारी जिंदगी मुल्क ने आपको ये दी है, हार दूजा फनकार मुल्क छोड़ने की धमकी दे देता है। वैसे आप जाना चाहते हैं तो जाए, धमकी दे के तो ना जाए भाई जी। आप इलेक्शन के रिजल्ट पे कह रहे हैं मैं मुल्क छोड़ दूंगा, हाथ धो गई आपकी, बड़ा आपका प्लास्टिक की बतख जैसा मुंह है। क्या मतलब अजीज साहब? अब बड़ी क्यूट होती है, उसमें पैर आ जाए तो बंदा डर जाता है। मुल्क भर में हड़ताल, मिस्र के पुलिस एहलकारों ने कहा है कि हमें सियासत से दूर रखा जाए। देखो मुल्क एवं तरक्की कर दे, सियासत से दूर रहने के लिए उन्होंने हड़ताल कर दी है। साडा इत्थे हाल जे के सियासतदानां दा मालशिया भी सानू अगों तड़ी ला दिंदा है। ओ जे मेरी सब चुकानी तो फिर करावां तेनू पुट्टा साहब दा फोन, नहीं बात आंदा तो फिर करावां फोन तेनू। जे फिर अगों अख के कह दियो ना कि करा यार केड़ा फोन करानी करा, ते फिर 1000 रुपया कट के दे दिंदे। ऐसे बेवकूफ ने, उतो ऐसे मखौलीए लोग ने साडे, अगों कहंदे ने जी 1000 दे नोट ते जेड़ा नंबर लिखिया ना ए डायल करो, पुट्टा साहब दा नंबर है। अच्छा, मैं क्यों ये नंबर केड़ा है, जायज पैकेज है? कहते नहीं नजायज पैकेज है। मैं फिर रट्टा पा लिया, मैं कहा डिजिट कटने एक और नोट दे, नंबर तो पूरा देना फिर एक और कट। नाज़रीन हम लेते हैं छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। मिस्टर जनाब सलीम साहब, हमारी पिछली गली में एक भाई साहब रहते हैं, हाजी कोगा साहब।
हंसने वाली कौन सी बात है? अब नहीं हमारी गली में कोई नॉर्मल बंदा रहता तो मैं कहां से ले आऊं? नाम है उनका हाजी कुगा, असल नाम तो उनका सतवत जिया है। हाजी कुगा साहब मुझे मिले हैं कल, मैंने कहा हाजी साहब आजकल जनाब कारखाने नहीं जाते। मुझे कहते हैं ये हमको 52 साल उम्र होगी। कहते हैं यार बड़ा कर लिया कारोबार, बस मैंने रिटायरमेंट ले लिया, फैक्ट्री बंद कर दी। मैंने कहा जी खैर है, को अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे को बीमार हो गए? कहते हैं नहीं नहीं अल्लाह के फजल से सेहतमंद हूं मगर बड़ा कर लिया बस। मैंने कहा को कारोबार में मंदा हो गया है, को गैस शैस की वजह से मशीनें नहीं चल रही हैं, बत्ती जाने की वजह से को कम खराब हो गया? कहते हैं नहीं बस चल रहा था, गुजारा तो बड़ा अच्छा हो रहा था फैक्ट्री का, माशाल्लाह प्रॉफिट भी ताड़ा आ रहा था, मगर दिल चाट हो गया। हाँ ऐसे कई लोग होते हैं, इनका तो चलो दिल चाट हो गया, कई कह देते हैं कि यार बस अब मैंने अल्लाह अल्लाह कर दी। हालांकि अल्लाह अल्लाह जो है वो दुनियावी काम साथ करते भी हो सकती है और करनी चाहिए ऐसे, बल्कि हुक्म ही इस चीज का। ये वाली अल्लाह अल्लाह ज्यादा मुस्तासन है। नहीं मुस्तासन तो सतवत जिया साहब का हमसाया है, उसे बिल्लू भांबड़ कहते हैं। मैं हैरान हो गया कि ये सतवत जिया साहब यानी कि हाजी कुगा साहब क्या कह रहे हैं। मैंने कहा जनाब आप काम करते रहे, आपकी फैक्ट्री में माशाल्लाह को 100-125 बंदा काम करता है, उनकी रिजक रोजी लगी हुई है, आप भी जो पैसे कमाएं आपको जितने चाहिए, अगर फालतू हो गए आप बहुत ज्यादा तो फिर वो गरीबों में तकसीम करते रहे। आपकी भी एक रूटीन बनी हुई थी फैक्ट्री आना जाना, आप घर बैठ के बीमार हो जाएंगे। एक कारखाने के मुनाफे से दूसरा कारखाना बनाते, दूसरे से तीसरा बनाते। असल बात यह है कि वो जायज हदूद में रहते हुए कारोबार करते, यानी जो शरीयत के अहकामात हैं, जो मुल्क का कानून कहता है, उन सब पर अमल दरामद करके अपने कारोबार को फरोग देते, खल्के खुदा का भला करते, लाखों लोगों को रोजगार देते। ये जो फैक्ट्रियां हैं, ये जो तजारती इदारे हैं, बड़े बड़े होटल्स हैं, ये सब कुछ जहां पर भी सर्कुलेशन ऑफ वेल्थ है, जहां पर यानी इर्तिकाज़े दौलत से बचने के लिए मुख्तलिफ मैकेनिज्म है हमारे यहाँ, वो एक तरह से सिर्फ लोगों की खैर का काम नहीं करते, इन वन वे और दी अदर यार वो सदका जारिया है, बिल्कुल ऐसे वो जारी रहने चाहिए, उनको मजीद फरोग मिलना चाहिए। आजकल ये एक बात ये भी बड़ी फजूल सी गर्दिश करने लग गई हुई है कि एक फैक्ट्री सी देखो इसने 6 लगा ली है। हाँ किस तरह लगानी है वो ठीक है, वो पूछो, वो पूछ के छोड़नी चाहिए, चेक होना चाहिए। लगा ली है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि 6 होनी चाहिए, इससे मुल्क की तरक्की भी है और रोजगार का भी इजाफा हो रहा है। इस हवाले से भी हमारा माशरा किसी न किसी अंदाज में 2 इंतहाओं का शिकार है। यानी एक ऐसे हैं जो हर वक्त जिन पे पैसे की हवस सवार है, वो हर हद से गुजर जाने के लिए तैयार है, जिनके पास सोने का वक्त भी नहीं है, वो भी गलत रवैया है। लेकिन एक ऐसी क्लास भी डेवलप हो रही है जो काम करने की उम्र है, जब वो बहुत कुछ कर सकते हैं, खल्के खुदा का भला कर सकते हैं, वो उसी उम्र में उसी नहज पे ये सोचने लग जाए कि मुझे सब कुछ जो है वो त्याग देना चाहिए और कोने में बैठ के अल्लाह अल्लाह करना चाहिए। ये रवैया भी गलत है। और वैसे भी यार अल्लाह ताला को खुश करने का इससे अच्छा क्या तरीका हो सकता है कि उसकी मखलूक को खुश किया। अल्लाह ताला की मखलूक को रोजगार मुयस्सर होगा, उसको खाने को मिलेगा आपकी वजह से, अगर आपकी वसातत से, आपके जरिए अगर ऐसा हो रहा है तो ये बड़ा सवाब का काम है। बिल्कुल बिल्कुल। सर बिल गेट्स एक वक्त था दुनिया का अमीर तरीन इंसान था, 14 बरस तक वो दुनिया का दौलतमंद तरीन शख्स रहा। और अगर वो जी हाय 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 ये हुआ ना यार। अगर वही अपने करियर के इब्तिदा में ये सोच लेता कि मैंने बहुत पैसा कमा लिया, अब मुझे यहाँ पर खत्म कर देना चाहिए सब कुछ, तो जो लोग अभी उससे लिंक्ड हैं, उसकी फील्ड से, वो कैसे मुस्तफीद होते हैं? बिल्कुल। आज देखो ना 27 साल पहले ही उसने अरबों डॉलर कमा लिए थे, लेकिन उसके बाद भी उसने अपना ये सिलसिला जारी रखा और कहा यह जाता है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली 50 करोड़ लोग दुनिया भर में बिल गेट्स की $5 ट्रिलियन की इंडस्ट्री से वाबस्ता है किसी ना किसी अंदाज में। 50 करोड़ जनाब। हाय हाय हाय। और सुना उसने अपनी कितनी सारी दौलत को 70% खरात में दे दी। बल्ले 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 बल्ले, बड़ी बात है यार। ये मेरा ख्याल है ज्यादा अच्छा तरीका है जिंदगी गुजारने का, बजाय इसके कि आप कहेंगे यार बस अब रेस्ट करता हूं, मैं बड़े पैसे आ गए हैं बस घर आराम करता हूं। भाई आप काम करने जोगे हैं, आप में अल्लाह ताला ने हिम्मत ताकत दी हुई है, तो उठ के काम करें, दूसरों का भी साथ बढ़ाओ। बिल्कुल।
और हमारे अपने देख लो तुम, इस्लाम के अंदर है हजरत उस्मान गनी से लेके यहाँ हमारे आज तक के बुजुर्गों तक बड़ा बड़ा अमीर आदमी हुआ और बड़े बड़े अच्छे किरदार के लोग, बड़ी बड़ी हस्तियां हुई हैं जिनके पास बेपनाह दौलत थी और उस दौलत को उन्होंने हल्के खुदा के भले के लिए इस्तेमाल किया है। उन्होंने ये नहीं किया कि रिटायरमेंट लेकर घर बैठ जाए। अच्छा सर, कुछ लोग ये कहते हैं कि औलाद और माल को फितना कहा गया है इस्लाम में। देखो इसमें ये नहीं है कि औलाद और माल जो है ये अल्लाह माफ करे ये अल्लाह ताला की नेमतें हैं। बेशक ये फितना कैसी हो सकती है? अल्लाह ताला की नेमत फितना हो सकती है? बिल्कुल नहीं। हाँ, ये कहा गया है कि इसकी वजह से फितना पैदा होगा। इसका जो इसका तरीका कार है ना, एक औलाद को आप औलाद के अपना सहूलतों के लिए आप कहीं हद से क्रॉस ना करें। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि आप अपने से ज्यादा आपको औलाद की सहूलतें यही होती हैं। बिल्कुल। इसलिए ये कहा गया कि औलाद की सहूलतें एक हद तक रखें, उसके लिए आप नाजायज रास्ता ना इस्तेमाल करें। और दौलत का भी यही कहा गया है कि जब आपके पास आए तो इसे फौरन खर्च करें। ये जो पास गले में पड़े हुए या बैंक में पड़े हुए पैसे हैं ना, ये फितना है। और इस्लाम का जो निज़ाम मईशत है उसकी तो बुनियाद ही खर्च करने पे है, बिल्कुल। सेविंग पे नहीं है, आप इर्तिकाज़े दौलत पर नहीं है, खर्च करने पे है ताकि लोगों की फलाह बहबूद के लिए वो पैसा वो सरमाया इस्तेमाल हो सके। जी। और ये जो माल और औलाद को फितना करार दिया गया, दरअसल इन दोनों से जो पैदा होने वाली आजमाइशें हैं वो फितना है। बिल्कुल, पैसे पास हो तो उसे फौरी तौर पे खर्च करें। मंगाओ जी 2 दर्जन समोसे, 7 चने जरूर मंगाना यार, तुम्हारी मेहरबानी है। कल भी मैंने तुमको कहा था समोसे और चने मंगाओ, तुमने निरे चने मंगा लिए। मैं किन्नों के साथ लगा लगा के खाता रहा। यहाँ लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। जी साहब, पेश कीजिए अपनी ताजा तरीन मुखबरियां। डिश ये क्या था जी साहब? ये रहा बैठा बैठा थक गया था, मैंने कहा ये सब को भी इधर उधर करो। डिश डिश डिश। ला जनाबे आली, एक मुखबरी मेरे 2 मुखबर लेके आए। मुखबरी एक की है। अच्छा। दोनों की अपनी अपनी मुखबरी और अपना अपना ख्याल है और अपनी अपनी खबर है जो मुझ तक पहुंचा रहे हैं। अच्छा। एक मेरे मुखबर ने कहा कि जी मियां, ये जो परवेज मुशर्रफ साहब का तुम सुन रहे हो कि 17 मार्च को यहाँ आ रहे हैं, उस हवाले से एक अरब मुल्क के बादशाह सलामत ने इधर अपोजिशन के एक बहुत बड़े भाई से कहा कि भाई जी गल सुना, वो आएंगे ठीक है, आप तो मुखालफत करें मगर प्रैक्टिकली मुखालिफ ना हो। अच्छा। उधर से उन्होंने गवर्नमेंट की एक बड़ी तगड़ी शख्सियत को कहा है कि भाई जी ठीक है कि इसको उस अपनी जगह पे मगर ये हाथ थोड़ा रखे। वो आ जाएंगे। अच्छा। आएंगे और उतरेंगे आके कराची, उधर से वो जमानत कराएंगे और फिर वो अपना रेल कार पे बैठ के तो लाहौर आ जाएंगे। अजीज साहब, ट्रेन चल रही है? चलो ट्रेन ना मिली तो अपना ठाठे मारता हुआ समुंदर चिंची पे बिठा के ले आएंगे। लो जी, दूसरा मुखबर जो है डिश डिश डिश। नाराजगी ना हो जाए, मेरी दफा तुमने डिश नहीं किया। दूसरा मुखबर कहता है कि ये सारा रौला ही है, ये मुशर्रफ साहब ने खुद डाला हुआ है एवं इधर तासुर लोगों में बढ़ाने के लिए कि मैं बड़े तगड़े तरीके से आ रहा हूँ। कोई ऐसी बात नहीं, कोई अरबी बादशाह या कोई इधर उधर का बंदा साथ इन्वॉल्व नहीं है, मगर मुशर्रफ जो है वो एक खतरों का खिलाड़ी है। खतरों से वो डरता नहीं है भाई, इसलिए उन्होंने फैसला किया कि ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, पकड़ा ही जाऊंगा ना। वो यही फैसला सोच के तो 17 मार्च को पाकिस्तान आ रहे। यानी आएंगे जरूर। जी। डिश 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 डिश। काफी लंबा डिश हो गया जी साहब। ये क्लासिकल डिश है। अच्छा। क्लासिकल सिंगर जो होते हैं ना, उनका साउंड टूट भी जाए तो वो अपना एक्शन बरकरार रखते हैं। लोग समझते हैं कि कर रहे थे,
इसलिए डिश खत्म भी हो जाए तो एक्शन वही रखते हैं। अच्छा लो जनाब, जो अगली मुखबरी आपको सुना रहा हूँ वो हल्की फुल्की आपने अखबारों में पढ़ी होगी। सैफुल्लाह बंगश सेनेटर पीपल्स पार्टी और वजीर दाखिला रहमान मलक साहब दोनों की रया रबानी साहब के चैम्बर के अंदर तू मैं तलख कलामी जो है वो हुई है, ये आपने पढ़ा है। मुखबर मेरा ये कहता गया ये तू मैं से बात आगे तक चली गई। दस्तों गिरेबां भी हुए, एक दूसरे के बाल भी पुटे। मादरत के साथ रहमान मलक साहब बालों की बात हो रही है, तो गिरेबान भी पकड़े एक दूसरे के, धौंसे भी करा दिए। हुआ यूं कि सैफुल्लाह बंगश साहब ने अपने 2 बच्चों के पासपोर्ट, जो ब्लू पासपोर्ट जिसे कहते हैं VIP, नो आम लोग खबरदार, VIP पासपोर्ट ब्लू पासपोर्ट रखे रहमान मलक साहब के सामने के इन दोनों के ऊपर दस्तखत कर दो। मलक साहब ने कहा कि ये राजयाते की चीज है जो मैं कर दूं दस्तखत, हाथ दो भैया। उस पर लड़ाई शुरू हुई थी। अच्छा लो जनाब, जब रैया रबानी साहब ने दस्तों गिरेबां छुड़ा दिए कि मेरे चैम्बर में ऐसा ना करें, उसके बाद सैफुल्लाह बंगश साहब ने कहा कि मलक रहमान, ये मैं तुम्हें बता दूं, तुम इधर उधर लड़ के तो बच जाती हो, तड़ियां भी तुम्हें इधर उधर से लगती हैं तो तुम गुजारा कर रहे हो, मगर मैं बंगश हूं, तुम बंगशों की दुश्मनी नहीं जानते। मैं बड़ी देर तक दुश्मनी टोरता हूं, और जब तक मैंने इस बेइज्जती का बदला ना ले लिया मैंने तुम्हें छोड़ना। ओए होए होए। जिस पे रहमान मलक साहब का फुटवर्क कांपना शुरू। फुटवर्क होता है कि चलते हुए कांपना, एक ये भी फुटवर्क होता है और ये भी फुटवर्क होता है। ये फुटवर्क से ज्यादा हैंडवर्क लग रहा है। मैं माफी चाहता हूँ, ये रहा काफी दिन हो गए थे। अच्छा जनाब, एक दुआना और एक डांस, या तो ज्यादा मैं हफ्ता ही निकालता हूँ। लो जनाब, जब तड़ी लगा दी उन्होंने तो याहिर है फिर मलक साहब ने कहा कि काम खराब हो गया। मलक साहब बेचारे सीधे साधे बंदे हैं, उनके वालों से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कितने तो सीधे हैं। लो जनाब, मलक साहब ने फिर इधर उधर बंदे डालने शुरू किए, लोगों से कहा कि यार मेरी सुलह कराओ, ये क्या हो रहा है यार, मगर मेरी इज्जत भी रखाना, मैं भी वजीर दाखिला। ये जो परसों अशाया दिया है वजीर आजम साहब ने, उसमें फिर मलक साहब ने वजीर आजम साहब को और 2-3 और जो दोस्त तैयार किए हुए थे उनको इशारा किया कि आ गया बंगश, बंगश आ गया, बंगश बंगश। उन्होंने कहा हम भी देख रहे हैं, आ गया बंगश। फिर उन्होंने कहा कि क्या हुआ भाई जी, उंगली में दर्द है। अशारे अशूरे किए, नहीं समझे खीर आके के रहमान मलक साहब ने प्लेट उठा के कहा बंगश साहब चावल डाले। यानी फिर उधर पढ़ के लोगों ने सुलह सलाह करा दी, जफियां डलवा दी। गुड। नाज़रीन, यहाँ हम लेते हैं एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ के पार्टी इंतखाबात और इलेक्शन कैंपेन पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा जनाब शाह महमूद कुरैशी। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब। वालेकुम अस्सलाम जुनैद सलीम। देख लो हमने कर दिखाया, पार्टी इलेक्शन को वादाए फरदा पे नहीं टाला, वरना हम टाल सकते थे, और अगर टाल नहीं तो कम से कम मटोल सकते थे। और मटोल का फायदा ये है कि ये टाल के साथ भी लग जाता है और गोल के साथ भी लग जाता है। लेकिन आफरीन है हम पे कि ना टाल मटोल की तरफ गए और ना ही गोल मटोल की बात की, बल्कि एक साफ शफाफ नई नकोर लिश्क दी क़यादत कौम के आगे ला के रख दी। जैसे होटल का बैरा आपके सामने लाके तरी वाला सालन रख देता है। तरी तो आप समझते होंगे, जैसे औंतरी, दोहतरी,
बेहतरी, कमतरी, ये सारी तरियां हैं, मगर जिस तरी की हम बात कर रहे हैं ये बिल्कुल सुर्ख रंग का रोगने जर्द होता है। सुर्ख रंग का रोगने जर्द। जुनैद साहब, कभी सबज चाहे सबज हुई है, हाथ पीले करने के लिए मेहंदी लगाते हैं जो ब्राउन रंग की होती है, मगर कहते यही है कि हाथ पीले हो गए। बात का मजा लिया करें जुनैद साहब, लफ्जों के पीछे ना भागा करें, वो भी शाह महमूद के लफ्जों के पीछे, जिसके पीछे लफ्ज खुद भागते हैं। अभी हम जब रवां दवां थे यहाँ चैनल की तरफ, तो हमारे पीछे एक लफ्ज भागा आ रहा था। पहले तो हम डर गए, मगर हमें देख के लफ्ज दुम हिलाने लगा। किसी आवारा लड़के ने उसे पत्थर दे मारा। वो लफ्ज बेचारा कितनी दूर तक चाऊ 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 करता हुआ चला गया। हमने 3 चाऊ कम किए हैं, उसने ज्यादा किए थे। शाह साहब, आपके पार्टी के इलेक्शंस में तो मार कुटाई हुई है। मार कुटाई न कहिए जुनैद साहब, इस तरह के सख्त लफ्ज हमारी तबीयत पे नागवार गुजरते हैं। धूल दप्पा कह सकते हैं। और ये तो होता है, इलेक्शन थे, कोई स्कूल तो नहीं था जहां पे लिखा होगा मार नहीं प्यार। शाह साहब, आपके कारकुन जख्मी हुए हैं। देखिए, ये आप गोलू से काम ले रहे हैं। किससे? हमसे दोबारा नहीं कहा जाएगा। देखिए, अगर चंद जरबाते शदीद की वजह से कुछ कारकुनों के जिस्म पे चंद फुटनियां पड़ जाएं और उनमें से हल्का सा लहू रिसने लगे, तो उसे आप जख्मी कहेंगे? भाई, ये तो हुस्न है उस जमहूरियत का जो सिर्फ तहरीक इंसाफ में मौजूद है। हाँ, कुछ कारकुनों को वो फुटनियां जो हैं वो जरा बड़े साइज की पड़ गई थी, और उनमें से लहू रिसने की बजाय बहने लगा था। मगर मेरा ख्याल है कि उन्हें फौरी तौर पर शफा खाने पहुंचा दिया गया था, और उन्हें पार्टी डिसिप्लिन के तहत ये हदायत भी कर दी गई थी कि खामोशी इख्तियार कीजिए। अच्छा शाह साहब, ये भी कहा जाता है कि ज्यादातर अजला में आपका हमायत याफ्ता ग्रुप जीत गया, इसलिए कि इलेक्शन बड़ा शफाफ हुआ। अच्छा, और मुल्तान में आपने अपनी शिकस्त के खौफ से इलेक्शन होने ही नहीं दिया। देखिए, ये आपको किसी ने गलत पैगाम पहुंचाया। शिकस्त के खौफ से नहीं, हार के डर से। मेरा मतलब है कि जमहूरियत की हार के डर से। हम हर सूरत में जमहूरियत को कायम करना चाहते हैं, और ये जमहूरियत का हुस्न सिर्फ तहरीक इंसाफ की वजह से कायम है। चूंकि हमने जमहूरियत को लहू दिया है, सुंदस फाउंडेशन ने नहीं दिया, और पूरी 1 बोतल खून दिया है। ये कोई कम नहीं। बिल्कुल। मगर क्या है कि लहू देना शाह महमूद के लहू में शामिल है, और ये जज्बा आज नहीं, बचपन से ही हमारे अंदर मौजूद है। हमें बड़ी अच्छी तरह याद है कि हम बिल्कुल जवान थे, बल्कि लड़कपन में थे। अपने घर के बाहर सड़क के ऊपर खड़े थे, वहां से एक तांगा गुजरा। मौसूफ कोशवान तांगे के कॉकपिट में बैठे हुए थे। नहीं समझे? यानी बांस पे बैठे हुए थे। कोचवान ने बड़ी बेदर्दी से घोड़े को चाबुक मारा। शायद उसके कान वान पे लग गया बेचारे के। उसने भी जवाबी कार्रवाई की, 2 लत्ती मारी। कोचवान नीचे गिर के जख्मी हो गया। हम चूंकि पास खड़े थे और जज्बा हमारे अंदर मौजूद था, वैसे तो अंदर साइकिल भी मौजूद थी, मगर हमसे लहू देखा नहीं गया। उस जख्मी कोचवान को शाह महमूद ने उठाया और सरपट दौड़ा अस्पताल की तरफ। फौरन जाके उसे दाखिल करवाया। अच्छा। और उस बेचारे जख्मी कोचवान को किसी और ने नहीं, इसी शाह महमूद ने खून की बोतल दी। अच्छा। पौने 200 रुपए की लेके। भाई, आप लोग हंस रहे हैं, ये पौने 200 कोई कम रकम नहीं थी उस वक्त। ये उस दौर की बात सुना रहा हूं जब पौने 200 की बीको साइकिल आ जाती थी। हमें बड़ी अच्छी तरह याद है, उसी साल हमारे चचा ने 125 रुपए का ईद के लिए बकरा खरीदा था। अब देखिए, 125 में उसी बकरे के पट्टे नहीं आते। शाह साहब, आपने उस कोचवान को अपना खून भी नहीं दिया। फन्नी पेचीदगी थी। हमारा खून का ग्रुप ए मस्बत था और मौसूफ का ए पॉजिटिव। हमें जो ही डॉक्टर ने बताया कि इनका ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है, तो फिर हम भागे ब्लड बैंक की तरफ और खर्च दिए पौने 200 रुपए। अच्छा शाह साहब,
کیا وجہ ہے جتنے بھی سروے دیکھنے میں آ رہے ہیں اس میں آپ کی مقبولیت کا گراف جو ہے وہ نیچے آتا جا رہا ہے؟ دیکھیے ان گیلپ سروے والوں کو ہماری مقبولیت نظر نہیں آ سکتی، کیونکہ ہماری گجی مقبولیت جیسے گجی سٹ ہوتی ہے نا وہ نظر نہیں آتی، اس کے لیے صرف مالش ہی تجویز کی جاتی ہے، اسی طرح ہماری گجی مقبولیت ہے۔ اچھا اور ویسے بھی یہ گیلپ سروے نہیں، یہ گپ سروے ہے۔ بھائی چلیں یہ تو مان لیا کہ عمران خان کی مقبولیت دوسرے نمبر پہ آ گئی، مگر شاہ محمود بھی تو اسی پارٹی میں ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ پاکستان میں مہنگائی اور شاہ محمود کا گراف نیچے آئے۔ اگر آپ لوگوں کو نہیں یقین تو ہاتھ کنگن کوار سے کیا 23 مارچ کا جلسہ دیکھ لیجئے گا، انشاءاللہ آپ لوگ دیکھیں گے شاہ محمود قریشی ہوگا اور عوام کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہوگا، اور سب طرف ایک ہی آواز بلند ہو رہی ہوگی، اب نہیں تو کب، ہم نہیں تو کون، امن ہو یا جنگ ہو، ساتھیوں کے سنگ ہو۔ انشاءاللہ شاہ محمود قریشی ہوگا اور عوام کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہوگا۔ ہاں عمران خان بھی ہوں گے۔ اس ہنسی کا میں کیا مطلب دوں؟ یہ تھا آج کا حسب حال۔ خوش رہیں، خوش رکھیں، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل۔ اللہ حافظ۔